Whilst the national spotlight is fixed on the Ayodhya land dispute verdict by the Supreme Court, there's another case that is crawling for the last 27 years, the Babri Masjid demolition case. And the accused list includes BJP veterans such as L.K. Advani, Murli Manohar Joshi, Uma Bharti and Kalyan Singh. The trial that started in 1993 met a setback in 2003 when criminal charges were dropped by a sessions court. It hit a dead end after Allahabad High Court rejected CBI's plea to revive charges in 2010. The case revived in 2017 with the Supreme Court striking down the Allahabad High Court's order and return of the criminal conspiracy charges. Others facing trial include former BJP MP Vinay Katiyar and Sadhvi Ritambra. 3 other high-profile accused, Giriraj Kishore, Vishwa Hindu Parishad leader Ashok Singhal and Vishnu Hari Dalmia, have died during trial. The Liberhan Commission, which took 17 years to complete its inquiry, held several senior BJP leaders responsible for the demolition of the Babri Masjid on December 6, 1992. The report minced no words in indicting senior leaders of the BJP, RSS, VHP, Bajrang Dal and Shiv Sena. The commission squarely held a handful of malevolent leaders masquerading as moderate elements in the Sangh Parivar responsible for the demolition. It cannot be assumed even for a moment that Advani, Vajpayee and others in the BJP did not know the designs of the Sangh Parivar, the report concluded. The top court in 2017 strongly rebuked the CBI for a delay of 25 years in the trial and ordered a day-to-day hearing and asked for the case to be concluded in 2 years. Uttar Pradesh Chief Minister at the time of demolition, Kalyan Singh, who enjoyed immunity as Rajasthan governor, is now also facing trial after demitting office. He appeared in court on September 7th. In July this year, the Supreme Court ordered that verdict in the demolition conspiracy case should be delivered within 9 months. The top court also extended the tenure of the trial court judge who was scheduled to retire on September 30th. Will the case see a closure and justice after almost 3 decades? कि उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाए। बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट है ये, और हिस्टोरिकल फैक्ट ये भी है कि ताले खुलाने का मामला उसका शाहबानों से कोई ताल्लुक नहीं था, ये पहले से चल रहा था। और तीसरी बात इसमें यह है कि जस्टिस पांडे ने जो जजमेंट दिया था, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैंने ताले खोलने का जजमेंट इसलिए दिया क्योंकि मेरे कोर्ट में एक काला बंदर आकर बैठा था और लोग उसको बादाम खिला रहे थे, अखरोट खिला रहे थे, नहीं खा रहा था। जब मैंने जजमेंट दिया तो दोबारा वो काला बंदर मेरे घर में आकर बैठ गया, तो मैंने समझा कि प्रभु ने मेरे जजमेंट को कबूल कर लिया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस जितना ये जुडिशियल मामला रहा है 1949 से लेकर ताले खुलाने तक, इसमें इंसाफ नहीं हुआ है। आप एक बात याद रख लीजिए कि माधव गोडबोले ने जो कहा बिल्कुल सही है, लॉक पड़ा हुआ है, 4:15 को जजमेंट आता है और 15 मिनट के अंदर लॉक को तोड़ दिया जाता है, जिसके पास चाबी उसको बुलाया भी नहीं जाता। और फिर उसके बाद राजीव गांधी अपनी इलेक्शन की मुहिम का आगाज वहीं से करते हैं, उस जगह से करते हैं। आप बताइए, ये सब चीजें हिस्टोरिकल फैक्ट है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते, बिल्कुल सच्चाई पर मुबन्नी है और हम इस बात को मानते हैं। और हम माधव गोडबोले साहब ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, वो फैक्ट है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजीव गांधी पहले करते वक्त बिल्कुल वो उन्होंने जो माधव गोडबोले ने कहा बिल्कुल सही है। उन्होंने जो माधव गोडबोले साहब ने कहा है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्हीं के ऑर्डर्स के ऊपर ये ताले खुलाए गए। आप बताइए कि जिस जमाने में ताले खोले गए कंप्यूटर नहीं था, 5 मिनट की हियरिंग होती है और 25 पेज का ऑर्डर दिया जाता है, टाइप करने कम से कम 15-20 मिनट तो लगेंगे ना। बिल्कुल। In 2002,
when Modi was the chief minister, a train full of pilgrims coming back from the destruction of this Ayodhya mosque, which was disputed. The train caught fire. Nobody knows who set fire to the train, and 57 pilgrims were burned. सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, पर आचरण किया जाएगा। उनके बाद नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा। मैं नहीं जानता धन्यवाद क्या होगा। Welcome to a very important episode of Babri case under our Legal Awareness web series। अगर आपने अभी तक Legal Awareness web series को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसे सब्सक्राइब करें। मेरा एक्सपीरियंस अब तक के इस सीरीज़ में ये रहा कि जब कोई पॉलिटिक्स की बात हो तो व्यूअर्स ज़्यादा इंटरेस्ट से उसमें देखते हैं, और जब कॉम्प्लिकेटेड लीगल इश्यूज़ की बात हो तो उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है। मेरा इस सीरीज़ को बनाने का पर्पज़ लीगल इश्यूज़ को हाईलाइट करना है। तो मेरी सारे व्यूअर्स से बहुत रिक्वेस्ट है कि आज के एपिसोड में हम, क्योंकि हाई कोर्ट के जजमेंट्स की बात कर रहे हैं, 3 जजमेंट्स की बात कर रहे हैं। ये जजमेंट 2-1 था, 2 जजेस मेजॉरिटी में थे, 1 जज माइनॉरिटी में था, और इस जजमेंट के अगेंस्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में है, और जो फैसला आएगा वो इस जजमेंट के ऊपर आएगा कि ये जजमेंट सही था या गलत था। अब आपको मैं समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों जजमेंट्स पढ़े होंगे, इंडियन हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के, यूएस सुप्रीम कोर्ट के, ऑस्ट्रेलियन कोर्ट्स के, ब्रिटिश कोर्ट्स के। मैंने आज तक कोई ऐसा जजमेंट नहीं पढ़ा जैसा ये जजमेंट है। इनफैक्ट इस जजमेंट को मैं ये कह सकता हूं कि ये एक क्लासिक केस है इस बात पे कि जजमेंट कैसे नहीं लिखना चाहिए। इस जजमेंट में लॉ का जिक्र कम है, मिथ्स का, हिस्ट्री का, सुपरस्टिशंस का, बिलीफ्स का जिक्र ज्यादा है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये जजमेंट जजेस के गैस वर्क पर बेस्ड है। लॉ में किसी प्रॉपर्टी के ओनरशिप और पोजेशन क्या हम गैस वर्क पे तय करते हैं? ये प्रिंसिपल मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, ये नया जूरिस्प्रूडेंस है, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसी को अप्रूव कर दे। तो आप ये देखिए कि इस जजमेंट में जस्टिस अग्रवाल का जो जजमेंट है उसमें कंजेक्चर्स हैं, उसमें गैस वर्क है, और इस गैस वर्क के बिना पे वो कुछ नतीजों पे पहुंचते हैं, और उसमें से कुछ चीज़ों से दूसरा जज भी एग्री करता है। ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी। दूसरे मुझे लगा कि ये जजमेंट का सिर्फ एक ही पैरेलल है, और वो भी इसी केस में आया। जस्टिस तिलहरी का जिक्र मैं पिछले एपिसोड में कर चुका हूं कि उन्होंने 1 जनवरी 1993 को किस तरीके से मेकशिफ्ट टेम्पल में परमिशन दी, पूजा की, इसकी। उन्होंने जो वो जजमेंट दिया था, उस जजमेंट में आपको ताज्जुब होगा कि उन्होंने लिख दिया कि साहब भगवान राम जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी हैं। अब वो देश का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जब ये बात हुई थी कि क्या प्रीएम्बल जो है वो ऑलमाइटी के नाम से शुरू की जाए, और उसको एक वोट से रिजेक्ट किया गया था, आपको लगता है उसमें भगवान राम का जिक्र आया होगा? उनका आर्गुमेंट यह है कि जब ये 26 नवंबर 1949 को ओरिजिनल जो 2 कॉपीज बनी थी उन पे सिग्नेचर्स हुए थे, तो उन पे बहुत सी पेंटिंग्स बनाई गई थी।
उन पेंटिंग्स में टीपू सुल्तान की भी थी। अब आपको मालूम है कि बीजेपी टीपू सुल्तान की जयंती पे कितना हंगामा करती है। अगर वो टीपू सुल्तान को भी कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी मानते हैं तो फिर कर्नाटका में उसकी अपोजिशन ना करें। उसमें अकबर की भी थी, और अकबर मुगल है और मुगलों को तो हम इन्वेडर्स मानते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की गलत रीडिंग है, लेकिन वो जिस तरीके का जजमेंट है उसी तरीके का ये जजमेंट मुझे लगता है। अब इस जजमेंट में बात हो रही है प्लेस ऑफ बर्थ की। हम सब अपने फॉर्म्स भरते रहे हैं, पासपोर्ट के, नौकरियों के। प्लेस ऑफ बर्थ में क्या हम लिखते हैं कि हमारा रूम नंबर 5 ऑफ हॉस्पिटल सो एंड सो, या हमारे घर में वो नीचे वाले कमरे में जो छोटा कमरा था उसमें हुए थे। किसी का भी प्लेस ऑफ बर्थ की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आज भी नहीं होती। और यहां हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स की बात कर रहे हैं, इसलिए इस केस में कभी किसी ने नहीं कहा कि ये एग्जैक्ट वो प्लेस था सेंट्रल डोम के नीचे जहां भगवान राम की बर्थ हुई थी। आप पूरे सिटी का नाम ले लेते हैं, आप कह देते हैं कि साहब मैं रामपुर में पैदा हुआ, मुरादाबाद में पैदा हुआ, या भगवान राम जी के बारे में यह कहा जा सकता है कि वो अयोध्या में पैदा हुए। लेकिन अयोध्या भी कई हैं, आपको मालूम है, थाईलैंड में भी एक अयोध्या है, अफगानिस्तान में भी एक अयोध्या है। लेकिन जजमेंट देने का यह तरीका मेरे हिसाब से सही नहीं है। अब एक और इस केस में जो जजमेंट में बड़ी बहस होगी वो लिमिटेशन के बारे में होगी। अब उसमें मेजॉरिटी जजेस ने यह कहा कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड का केस है वो 1961 में फाइल हुआ और वो लिमिटेशन में है, लेकिन रामलला का केस जो 1989 में फाइल होगा वो लिमिटेशन में नहीं है। मैं इस सिलसिले में ये समझता हूं, मैंने आपसे कहा था कि मैंने अभी आपको अपना ओपिनियन नहीं बताया। जब सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे तो बेहतर चीज ये होगी कि वो ये कहें कि साहब टाइटल सूट में ऑन द बेसिस ऑफ लॉ एंड एविडेंस सुन्नी वक्फ बोर्ड का टाइटल है, लेकिन क्योंकि इन्होंने 12 साल ले लिए केस फाइल करने में, तो लिमिटेशन लॉ के तहत इनको वो दिया नहीं जा सकता। और जो 1989 में रामलला वाली पिटीशन फाइल हुई उस पिटीशन को रिजेक्ट किया जाना चाहिए, और निर्मोही अखाड़ा जो इसमें पूजा अर्चना करते रहे 1855 से वो सारा केस लड़ते रहे, उनको ये मिलना चाहिए। ये लेकिन मेरा गैस वर्क है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि आप जो शैबिट है उसके अगेंस्ट कोई और तभी आ सकता है जब आप ये कहें कि शैबिट ने केस को सही से नहीं लड़ा। अब इसमें आप देखिए कि इस केस में 2 जजेस ने कह दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड लिमिटेशन से हिट हो रहा है, लेकिन जस्टिस खान ने कह दिया कि कोई लिमिटेशन से हिट नहीं हो रहा है। अब आइए जरा सा इस जजमेंट की बात थोड़ी और ज्यादा कर ली जाए। तो अजीब जजमेंट था, कोई पार्टी खुश नहीं हुई, सबकी सब पार्टी सुप्रीम कोर्ट में है। तो यह अजीब जजमेंट इसलिए भी है कि यह सारी पार्टीज जो लड़ रही थी और पूरे देश में अफरा तफरी मचाए हुए थी, चाहे हिंदू पार्टीज हो, चाहे मुस्लिम पार्टी हो, चाहे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हो या हिंदू साइड हो, ये सारी पार्टीज एक बात पे बिल्कुल एग्रीमेंट था इनमें कि ये जजमेंट गलत है। अब जस्टिस सिबगतुल्लाह खान और सगीर अग्रवाल जो हैं, उन्होंने इसमें ऑर्डर यह दिया कि साहब 3 हिस्से कर दिए जाएं। जो इनर पोर्शन है, सेंट्रल डोम है, वो रामलला जी को दे दिया जाए। जो सीता की रसोई है और चबूतरा, वो निर्मोही अखाड़े को दे दिया जाए। अजीब बात है, जजमेंट में यह भी लिखा है कि निर्मोही अखाड़े का कोई टाइटल नहीं है, उनको कोई रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए, और उसके बाद भी उनको 1/3 दिया जा रहा है, और जो कुछ बचे वो दिया जाए मुस्लिम पार्टीज को। अब आप ये बताइए कि ये पार्टीशन सूट नहीं है, ये टाइटल सूट है। और इसीलिए जस्टिस अहमदी ने इस जजमेंट के बाद यह कहा कि इसको जजमेंट कहना भी जो है वो गलत होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जब इसे स्टे किया, जो कुछ बात और कही वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा एक किसी और एपिसोड में। अब आप आइए इसमें कि मेजॉरिटी ने क्या डिक्लेयर किया, कि उन्होंने कहा साहब दोनों पार्टीज जो हैं वो ज्वाइंट टाइटल होल्डर्स इन पोजेशन हैं ऑफ द एंटायर प्रीमिसेस इन डिस्प्यूट। अब यह भी एक अजीब सी चीज है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस अग्रवाल के जजमेंट पे आते हैं। 31 वॉल्यूम्स में यह जजमेंट है। जैसे मैंने आपने कहा कि इस तरह जजमेंट नहीं लिखा जाना चाहिए कि कोई उसे पढ़ ही ना पाए। तो यह जस्टिस अग्रवाल का जो पहला जजमेंट है
4570 4570 पैराग्राफ्स हैं। बड़ी अच्छी उसमें प्रोज लिखी है, बड़ी ऑब्जेक्टिविटी दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन अल्टीमेटली जो है, जो बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं जजमेंट्स को, उन्होंने पढ़ लिया कि ये जजमेंट लिखने का तरीका सही नहीं है। और उसकी एक एग्जांपल मैं अभी आपको दे रहा हूं कि आपने अग्रवाल साहब कह रहे हैं निर्मोही अखाड़े को कोई रिलीफ नहीं मिलनी चाहिए, और फिर भी उनको राम चबूतरा और सीता की रसोई दे रहे हैं। अब इनका पूरा आर्गुमेंट अजीब है। ये अभी बात हो रही है आजकल हिस्ट्री रीराइट करने की, सरकार चाहती है, यहां जजेस भी हिस्ट्री रीराइट कर रहे हैं। तो जस्टिस अग्रवाल की थीसिस ये है कि ये बाबर ने बनवाई ही नहीं मस्जिद, बाबर तो बड़ा प्रो हिंदू था, ये मस्जिद जो है ये तो औरंगजेब ने बनवाई है, जो बाबर का आप समझिए कि पोते का बेटा होगा। अब ये अजीब बात है कि ये कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए सारे कंटेम्परेरी सोर्सेस छोड़ के, इंस्क्रिप्शंस को छोड़ के, हमारे ये जज साहब जो हैं वो एक ऑस्ट्रेलियन लिंग्विस्ट है जो एक हियर से एविडेंस दे रहा है। वो कह रहा है कुछ लोग ये कहते हैं कि रामकोटी फोर्टेस किले को औरंगजेब ने गिरा के मंदिर बनाया, यानी इस वाली बात में भी जिस पे रिलाई किया जा रहा है इस और ऑस्ट्रेलियन लिंग्विस्ट की बात पे, हियर से एविडेंस पे, वो भी ये नहीं कह रहा है कि राम टेंपल को गिरा के, वो भी ये कह रहा है कि एक फोर्टेस को गिरा के ये बात कही गई है। अब आप देखिए कि दूसरा जो इनके जजमेंट की खास बात है वो ये कि इन्होंने कहा भाई रामलला ज्यूरिस्टिक पर्सन है और जन्म स्थान भी जो है वो एक डीटी है और ज्यूरिस्टिक पर्सन है। अब ये जो एक आर्गुमेंट है, जाहिर है कि इंडिया में लॉ इस बात पे सेटल्ड है कि जो मूर्तियां होती हैं और आइडल्स होते हैं वो ज्यूरिस्टिक पर्सन हैं, कंपनी की तरह वो केस कर सकते हैं, उनके खिलाफ केस हो सकता है, वो प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सेटल्ड है। लेकिन क्या कोई एक जगह भी जो है वो भी लीगल पर्सन हो सकती है, ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है और उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार करना चाहिए। जस्टिस अग्रवाल का आर्गुमेंट ये कि ये पूरी जगह जो है ये भी अपने आप में भगवान है और इसकी भी लोग पूजा करते हैं, और अगर ये बात सही है और अगर हम मानते हैं कि अयोध्या में जो है वो बर्थ प्लेस है राम जी का, तो फिर अयोध्या में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं हो सकती और अयोध्या का हर घर और हर दुकान और हर लैंड जो है वो रामलला की प्रॉपर्टी ही सिर्फ होना चाहिए। अब इस पे अयोध्या वालों से पूछ लिया जाए कि वो ये आर्गुमेंट मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं। फिर एक बात इन्होंने और कही तीसरी कि साहब ये भी जरूरी नहीं है कि ये देखा जाए कि क्या राम वहां पैदा हुए थे। अब आप देखिए कि लॉ में फैक्ट्स पे बात होती है, यहां बात यह हो रही है कि यह फैक्ट, मुझे इस केस में यह इंटरेस्ट नहीं है कि वहां पे मस्जिद रहे या मंदिर बने, मंदिर बन जाए और देश में शांति हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मुझे यह जरूर इंटरेस्ट है एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ कि लोग सही फैक्ट्स और सही लॉ को समझें और सही फैक्ट को समझ के जो एक दूसरे के खिलाफ नफरतें हैं वो खत्म करें। अब आप ये देखिए कि वो ये कह रहे हैं कि साहब ये जरूरी नहीं है फैक्चुअली दैट रामा वाज बोर्न इन द प्लेस इन क्वेश्चन, इट इज इनफ टू प्रूव दैट पीपल बिलीव दैट ही वाज बोर्न देयर। अब ये आप लॉ से बिल्कुल अगर बिलीफ में चले जाएंगे तो पूरा प्रॉपर्टी लॉ सर के बल खड़ा हो जाएगा। कोई भी किसी के घर को ये कह सकता है भाई आई बिलीव कि ये घर मेरा है, तो बिलीफ्स पे प्रॉपर्टी तय करना कितना सही है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में क्या फैसला करती है, लेकिन जस्टिस अग्रवाल खुद क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस टू शो दैट प्रेयर्स वर ऑफर्ड इन मस्जिद अंटिल 1855 and virtually none thereafter, which raises the question, then what was the contestation about? ये झगड़ा काहे का हो रहा था? अगर मस्जिद में नमाज नहीं होती थी और वहां पूजा हो रही थी तो फिर 1856 में क्यों वो बीच में रेलिंग बनाई गई कि भाई अंदर मुसलमान नमाज पढ़ लें और बाहर राम चबूतरा पे जो है हिंदूज पूजा कर लें? तो किस तरह फैक्ट्स को तोड़ा मरोड़ा गया है वो इस जजमेंट में जरूर नजर आता है। फिर कैसे प्रूफ होगा, यह भी अजीब बात है। इसमें भी एक नया लॉ लिख दिया जस्टिस अग्रवाल ने
कि हिंदूज को यह प्रूव करने के लिए कि वो बाबरी मस्जिद के इनर यार्ड में प्रेयर करते थे, यह जरूरी नहीं है कि वो वाकई में, वास्तव में, रियलिटी में करते हों। अगर वो कर सकते थे यह काफी है। लेकिन इस मेडिवल मॉस्क में अगर मुसलमानों को यह साबित करना है कि वो वहां प्रेयर करते थे तो एक्चुअल प्रूफ दे। अब ये इस तरीके के दो रूल एक ही केस में बर्डन ऑफ प्रूफ के आपको अगर जस्ट लगते हैं और फेयर लगते हैं तो मेरे ख्याल से लॉ फिर से पढ़ना चाहिए। तो मैं इसे जरा सा अंग्रेजी में कह दूं, आसान लॉ पढ़ना अंग्रेजी में आसान होता है। द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन मुस्लिम क्लेमेंट वॉज टू शो दैट दे डिड इन फैक्ट प्रे। The burden of proof on the Hindu claimants was merely to show that they could have prayed. ये बिल्कुल एक अनइक्वल बर्डन ऑफ प्रूफ है और इस तरह से सिविल केसेस डिसाइड नहीं किए जाते। अब इन्होंने ये फैसला कर दिया फाइनली, जो मैंने आपको बता दिया कि साहब ये क्वेश्चन ऑफ फेथ है और इसमें क्वेश्चन ऑफ फेथ जो है वो इनफ है ये डिसाइड कर देने के लिए कि ये जो सेंट्रल डोम के नीचे जो है भगवान राम का जन्म हुआ और वो हिंदू पार्टी को मिलना चाहिए। अब जस्टिस खान के ओपिनियन पे आते हैं। जस्टिस खान का ओपिनियन जो है वो भी एक अजीब तरह की एनॉमली है। हर बात में ये अपने जजमेंट्स में जस्टिस अग्रवाल से डिसएग्री करते हैं, लेकिन कंक्लूजन इनका वही है जो जस्टिस अग्रवाल का है। मैं एक दो बातें जल्दी से बता दूं। जजमेंट वैसे अच्छा है क्योंकि ये जरा ब्रीफ है, क्रिस्प है, फैक्ट्स जो हैं उसको इन्होंने बहुत कंडेंस करके लिख दिया। पहली बात तो इन्होंने ये कही कि साहब पूरे रिकॉर्ड पे कहीं भी ये प्रूफ नहीं है कि 22 दिसंबर 1949 से पहले वहां मुसलमान प्रेयर नहीं करते थे। और इसका सबूत इन्होंने खुद ये लिया कि जो फैजाबाद का एसपी है कृपाल सिंह और जो वहां के डिप्टी कमिश्नर और डीएम हैं, इन लोगों ने खुद ही जो बातें कही हैं कि वहां प्रॉब्लम हो सकती है और वहां पे शायद कोशिश हो रही है कि वो कुछ ऐसा किया जाए कि मुसलमान मस्जिद को अबंडन कर दें और पूरनमासी पे हिंदूज जो हैं वो शायद फोर्सफुल एंट्री करेंगे। इस बात से खुद ये बात साबित हो रही है कि दिसंबर 1949 तक मुसलमान वहां प्रेयर करते थे। इन्होंने ये भी बात कही जो मैं पिछले एपिसोड में आपको बता चुका हूं कि जो 1 फरवरी 1986 में डिस्ट्रिक्ट जज ने बिना दूसरी पार्टीज को सुने हुए एक फैसला कर दिया कि बाबरी मस्जिद के लॉक्स खोल दिए जाएं, वो फैसला बिल्कुल गलत था और इन्होंने कहा कि उस जज ने जस्टिस अपीयर टू हैव बीन डन के प्रिंसिपल को बिल्कुल नकार दिया। तीसरी चीज इन्होंने जो ये कही कि अगर कोई मॉस्क किसी गजेट में, किसी सरकारी रिकॉर्ड में एज मॉस्क मेंशन्ड है, और आपको मालूम है कि बाबरी मस्जिद हर सरकारी रिकॉर्ड में और हर गजेट में मेंशन्ड है एज अ मॉस्क, तो फिर उसको यही माना जाएगा कि वहां प्रेयर होती है। अगर वो मॉस्क अनयूज्ड है तो उसमें लिखा जाएगा डिफंक्ट मॉस्क और मॉस्क वेयर नो प्रेयर इज हेल्ड। और इन्होंने ये बात भी खास तौर से ये कही कि ये जो ऑस्ट्रेलियन ट्रेवलर थे, लिंग्विस्ट टिफेंथिलर, इन्होंने खुद जो है एक बात ये कही कि लोगों की ये भी बिलीफ है कि राम जी का जन्म चबूतरा पे हुआ, यानी बेदी पे हुआ। उन्होंने वर्ड बेदी यूज किया है। तो आप ये देखिए कि अगर उसकी एक बात मान रहे हैं ऑस्ट्रेलियन ट्रेवलर की, तो दूसरी बात आप क्यों नहीं मान रहे हैं। और फिर उन्होंने ये बात कही कि ये प्रेयर 1855-56 तक इस बात से भी साबित होती है कि अंग्रेज सरकार ने एक बीच में रेलिंग बनवा दी थी। फिर उसके बाद ये जस्टिस खान जो हैं, इन्होंने हर बात ये मानने के बाद फिर ये कहते हैं कि साहब वहां पे 1949 में इल्लीगली एक इल्लीगल एक्ट के तहत मूर्तियां रख दी गईं। अब इतनी बात मानने के बाद फिर इन्होंने कैसे कंक्लूड कर दिया, मेरी समझ में नहीं आया कि साहब नो इनिशियल टाइटल वाज एस्टैब्लिश बाय आइदर साइड, यानी किसी भी पार्टी ने कोई अपना टाइटल, इनिशियल टाइटल जो है वो साबित नहीं किया। और इसलिए ये कह रहे हैं कि आउटर कोर्ट यार्ड वाज इन जॉइंट पोजेशन एंड देयरफॉर बोथ द
parties are joint title holders of premises in dispute. और फिर उन्होंने एग्री कर लिया वो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी जो जस्टिस अग्रवाल ने किया था कि सेंट्रल डोम हिंदू पार्टीज को दे दिया जाए, राम चबूतरा और सीता की रसोई निर्मोही अखाड़े को दे दिया जाए, और बचा हुआ जो है वो मुस्लिम पार्टी को दे दिया जाए। और इसमें आखिर में इन्होंने ये जो कंक्लूजन निकाला, इसका जरा सा जस्टिफिकेशन भी दे दिया। इन्होंने कहा भाई वो जो डार्विन की थ्योरी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अकोमोडेट कर लेता है, जो हालात से समझौता कर लेता है, जो इंपावरिश करता है, वो बचता है। मेरे ख्याल से वो इशारा कर रहे हैं कि यहां हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म हो रहा है, इसलिए मुसलमानों के लिए बेहतर यह है कि वो कंप्रोमाइज कर ले और डार्विन की थ्योरी से अगर वो अपने आप को बचना चाहते हैं, एक्सटिंक्ट होना नहीं चाहते हैं, तो वो जो सजेशन उन्होंने दिया है उसको एक्सेप्ट कर ले। अब हम तीसरे जजमेंट पे आते हैं। ये माइनॉरिटी जजमेंट है, ये लॉ नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है, अभी मैं बता चुका हूं कि मेजॉरिटी जजमेंट में दोनों पार्टीज को जॉइंट पोजीशन होल्डर माना था। इस केस में अब ये कहते हैं जस्टिस शर्मा कि ये जो पूरा एक केस है, इसमें मुस्लिम पार्टी को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, और उनके दो बेसिस हैं, उसके दो बेसिस की बात करूंगा। लेकिन ये जजमेंट एक लाइन में अगर बताऊं तो ये लॉ की कुर्बानी दे रहा है और रिलीजियस बिलीफ को लॉ के ऊपर रख रहा है। अब अगर ये प्रिंसिपल रहेगा तो कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बन सकती, क्योंकि मुस्लिम्स के, क्रिश्चियंस के, ज्यूज के और उनकी भी जितनी भी रिलीजियस बिलीफ्स हैं, वो जो देश का कानून होगा उसके ऊपर हो जाएंगे। देश को तय करना है कि वो उसे क्या करें। तो पहली इनकी रीजनिंग ये है कि लॉस ऑफ टाइटल एडवर्स पोजेशन से नहीं हुआ, क्योंकि लॉस ऑफ टाइटल एडवर्स पोजेशन से गॉड का, ब्राह्मण्स का वेल वर्स्ड इन वेदास, डीटीज का, किंग्स का, वेमेन का और माइनर्स का नहीं होता है। अब यह प्रिंसिपल अगर चलेगा तो इंडिया में किसी भी औरत के खिलाफ आप कभी भी एडवर्स पोजेशन का केस नहीं जीत सकते। देश को तय करना है कि वो क्या इस तरह का लॉ चाहते हैं। फिर एक चीज इन्होंने ये कही कि साहब जो एडवर्स पोजेशन है वो इस केस में और भी इसलिए नहीं अप्लाई होता क्योंकि जो लिमिटेशन का लॉ है, आप समझ लीजिए लिमिटेशन का लॉ जो है वो लॉ ऑफ पीस है, लॉ ऑफ सर्टेनिटी है कि भाई अगर आपने इस पीरियड के अंदर अंदर केस नहीं किया तो आपका राइट खत्म हो जाएगा। ये नहीं कि भाई हमें अब लगे कि कभी भी हमारे खिलाफ केस हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गो के लिमिटेशन लॉ का टेक्निकल मीनिंग लिया जाएगा तो इवन सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी आप लिमिटेशन से बाहर नहीं कर सकते। लेकिन अगर वाकई में हमको हिंदुओं के सेंटिमेंट्स देखते हुए देश में शांति रखने के लिए उनको देना है तो फिर बेटर यह है कि हम ये कह दें कि साहब सुन्नी वक्फ बोर्ड लिमिटेशन में था। अब इसमें ये कहते हैं कि कोई भी लिमिटेशन जो है वो डीटी के अगेंस्ट जो है वो नहीं चलेगी, वो परपीचुअल माइनर है और वो जूरिडिकल पर्सन है हु इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टीज, और इसलिए ये लिमिटेशन का बेनिफिट डीटी को देते हैं लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड को ये बिल्कुल नहीं देते। और इनका ये कहना है कि साहब वो डीटी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है। ये बात बिल्कुल सही है कि डीटी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, इसलिए उसको ज्यूरिस्टिक पर्सन माना गया। लेकिन ज्यूरिस्टिक पर्सन बनने के बाद अब सारा लॉ सब पे एप्लीकेबल होगा, चाहे वो एडवर्स पोजेशन का लॉ हो, चाहे वो लिमिटेशन का लॉ हो। लेकिन इनका ये कहना है। फिर इन्होंने एक बात और ये कही कि साहब वर्शिपिंग गॉड जो है ये एक एसेंशियल फीचर है ऑफ हिंदू रिलीजन। बहुत से हिंदू इस देश में ऐसे हैं, साउथ में खास तौर से, जो भगवान राम की पूजा नहीं करते, तो क्या वो हिंदू नहीं है? फिर एक बात और ये कहते हैं कि साहब ये तो उनका आर्टिकल 25 राइट है। अब यहां पे वो सारी रेस्ट्रिक्शंस जो हैं आर्टिकल 25 की, उन सारी उनको ये भूल जाते हैं। फिर ये एक तीसरी चीज ये कहते हैं कि दरअसल ये तो मस्जिद जो है ये मस्जिद ही नहीं थी, और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इस्लाम में किसी टेंपल को गिरा के मस्जिद बनाना जो है वो सही नहीं माना जाता है। अब अजीब बात है कि ये खुद एक्सेप्ट ये कर रहे हैं कि ये जो टेंपल यहां पे था जो गिराया गया वो 12वीं सदी में बना था। आप सोचिए कि राम तो क्रिश्चियन एरा से पहले के हैं, तो क्या 11वीं 12वीं सदी तक राम का टेंपल नहीं था? लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट यही है कि 11-12 सेंचुरी तक राम के टेंपल्स नहीं हुआ करते थे। फिर ये बात ये कहते हैं
कि साहब वो ऐसा है कि वो पूजा जो है वो 1855 तक भी अंदर हो रही थी, और उसके बाद जो है मुस्लिम्स को ने जो है 1934 में झगड़ा किया, और उस झगड़े में जो है कुछ डोम्स डैमेज हो गए थे और वो ब्रिटिशर्स ने रीबिल्ड किए। रीबिल्ड डिमोलिश चीज होती है। ये डिमोलिशन 6 दिसंबर 1992 को होगा, लेकिन 1934 के बाद भी ये मुसलमानों के पोजीशन में रही, और इसीलिए यहां नमाज होती रही, जो मैं अभी पहले बता चुका हूं कि वो 16 दिसंबर 1949 तक तो बिल्कुल कंफर्म है, और 16 दिसंबर से 22-23 दिसंबर तक उसमें ताला लगा रहा। लेकिन ताला लगा होने के मतलब यह नहीं है कि वो मॉस्क नहीं रही। फिर जस्टिस शर्मा जो है वो जिस तरह से जजमेंट दे रहे हैं उसमें एक पार्टी को एविडेंस देने की जरूरत है, दूसरी पार्टी को बिल्कुल एविडेंस देने की जरूरत नहीं है, और यह प्रिंसिपल भी देश तय करे कि वो अपने लीगल सिस्टम में चाहता है। तो इन्होंने जब ये प्रूव कर दिया कि बाबरी मस्जिद थी नहीं, उसके बाद फिर ये पूरी स्टोरी बताते हैं किस तरह मुस्लिम रूलर्स ने जो है वो टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए, और यहां ये कहते हैं कि नो कोर्ट देयरफॉर इंसिस्ट ऑन फॉर्मल प्रूफ बाय एविडेंस of notorious facts of history, past or present, the date of poll, the passing away of men of eminence, and events that have rocked the nation need no proof and are judicially noticed. Judicial notice in such matters takes the place of proof and is of equal force. मुझे नहीं मालूम, मैंने जो एविडेंस लॉ पढ़ा है उसमें इस तरह के मैटर का जुडिशियल नोटिस नहीं लिया जा सकता है। और फाइनली ये बात ये कहते हैं कि साहब ऑफरिंग ऑफ प्रेयर्स जो है वहां पर बाई हिंदूज वो प्रूव हो गई, उसका जुडिशियल नोटिस ले लिया गया, इसलिए ये जो है ये केस उसमें वो कर देते हैं। बस मैं लास्ट बात ये कहना चाहता हूं, क्योंकि बिलीफ की बात हो रही है, कि कोर्ट ने खुद इस जजमेंट में ये बात रिकॉर्ड की कि कोई क्लियर पिक्चर नहीं है कि वहां टेंपल डिस्ट्रॉय हुआ राम जी का, कोई कंटेम्परेरी रिकॉर्ड नहीं है जो ये कहता हो इस तरह से या उस तरह से। जो पहली एविडेंस है वो 18th सेंचुरी की है, और स्कंद पुराण जो है और रामचरितमानस जो है उसमें जो अयोध्या आइडेंटिफाई होती है और उसमें जो प्लेस ऑफ बर्थ की राम की बात हो रही है, उसके बारे में अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो वो बाबरी मस्जिद की जगह नहीं निकलती, बल्कि वेस्ट ऑफ विसिनिटी ऑफ बहमंग कुंड नियर बेड ऑफ सरयू रिवर। पूरी इस केस की प्लीडिंग में कभी भी यह बात आर्गू नहीं की गई कि राम जी का जन्म सेंट्रल डोम के नीचे हुआ। हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करना चाहिए, पूरे देश को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जजमेंट एक्स पार्टी के फेवर में हो या वाई पार्टी के फेवर में हो, जजमेंट में अगर लीगल फ्लॉ होंगे उसका क्रिटिसिज्म एक्सपर्ट्स करेंगे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज आपको पसंद आती तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमको सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे और ट्विटर पे लाइक करें, और इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, और इमोशन से, सेंटीमेंट से और एग्रेशन से बचें। ये एक लीगल डिस्प्यूट है, देश की सबसे बड़ी अदालत इसमें जो कह दे उसे हमें मानना चाहिए।